So the topic that we are going to discuss, थोड़ा focus कर लो आप topic पे. The topic is nutrition in human beings. So at first, you should know the meaning of the term nutrition. And if I ask you what is nutrition, nutrition is the process of intake of food and utilization of food. It is the process of intake of food and utilization of food. So, what is nutrition if it is asked? Nutrition is the process of intake of food and utilization of food. And we are discussing nutrition in human beings. आप कैसे फूड लेते हो और फूड आपका बॉडी में जाने के बाद उसका क्या यूटिलाइजेशन है, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन. अगर मैं आपको पूछूं what happens to carbohydrates in your body, what is the use of carbohydrates in your body? If I ask you, can anyone tell me? Manish Chaudhary has given the answer that, and so many are giving, carbohydrates provide what? Energy. Carbohydrates provide energy. Okay. Similarly, proteins help in growth and development. Okay. Lipids are stored in the body for future requirement of energy. सो हियर पॉइंट ए, आज पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इस मटेरियल से वर्ड टू वर्ड. द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है वेयर organisms obtain solid food which is subsequently digested. Okay, ingestion होगा solid food का, that solid food is digested, absorbed, assimilated, and undigested food is egested out of the body. So ये न्यूट्रिशन का अगर पांचों स्टेप फॉलो होता है, what are the 5 steps of nutrition in hologic nutrition? They are ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Then the nutrition is hologic nutrition. In hologic nutrition, organism obtains solid organic food which is subsequently digested, absorbed, assimilated, and undigested food is egested out of the body. So the 5 steps. The 5 steps of nutrition, बात हो रहा hologic nutrition in human beings are: ingestion means the process of taking in of food. Digestion is a process where complex food materials are broken down into simple and soluble forms so that body can absorb it. Absorption का मतलब mixing of digested food or the simpler component of food with blood or body fluids. तो आपका इंटेस्टाइन में अगर फूड डाइजेस्ट हो गया, बाद में इंटेस्टाइन से वो आपका ब्लड में आ गया या फिर लिम्फ में आ गया या बॉडी फ्लूइड में आ गया, देन इट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन में, फिर वो फूड चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, सेल्स, टिश्यूज, जहां उस फूड का यूज होगा. एंड यूज ऑफ फूड इज व्हाट? एसिमिलेशन. Carbohydrates will provide energy, protein will help in growth and development, then lipids are stored in the body for future requirement of energy, vitamins, minerals, they help in various biochemical reactions. Okay, then egestion, ऐसा बहुत कंपोनेंट होता है आपका डाइट में जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते. डू यू नो दैट ह्यूमन बींग्स कैनॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज? Human beings cannot digest cellulose. Do you know the reason behind it? Anyone? Human beings cannot digest cellulose. What is the reason behind it? शिवेश पोद्दार ने लिखा हार्ड टू डाइजेस्ट, निखिल सिंह ने लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे प्रॉपर आंसर एक आया है, किसने दिया है? मनीष चौधरी. अपेंडिक्स इज नो लॉन्गर फंक्शनल. हम लोग में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसका रीजन क्या है? द रीजन इज दैट इन आवर बॉडी सेल्यूलोज डाइजेशन नहीं होने का रीजन है कि हम लोग का बॉडी में अपेंडिक्स इज नॉट फंक्शनल. अपेंडिक्स इज नॉट फंक्शनल. और हर्बीवोरस एनिमल्स में अपेंडिक्स फंक्शनल है, देयर बाय दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज. ग्रास का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल्यूलोज.
देन इंजेशन, व्हाट इज इंजेशन? अगर मैं इंजेशन का बात पूछूं, व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड. Human beings ingest food through mouth, and the food is put into the mouth with the help of hands. So normal human beings का बात हो रहा है यहाँ पे. They ingest food with the help of hands. और abnormal में आप के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी खा सकते हो. स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं आज मेंटी होगा क्या, तो इसका आंसर है आज मेंटी होगा. ओके. नाउ डाइजेशन. The digestive system in human beings is responsible for the digestion of food. Digestive system, यहाँ पे आप diagram दे सकते हो. That diagram is related to digestive system in human beings. It helps in digestion of food. It consists of alimentary canal and its associated glands. आप यहाँ देख सकते हो mouth to anus. This tube is nothing but alimentary canal. एंड देयर आर एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जैसे यहाँ लीवर देख सकते हो, सलाइवरी ग्लैंड देख सकते हो, पेनक्रियास देख सकते हो. दे आर एसोसिएटेड ग्लैंड्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन. कैसे हेल्प करेगा, विल डिस्कस टुडे. द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, esophagus also called food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. Okay, तो आप यहाँ इन पार्ट्स के बारे में अगर देखो, माउथ, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ. Then esophagus, this food pipe, this one connects mouth and the stomach. Then stomach, this bag-like structure. Small intestine, here this highly coiled structure in this part. Then large intestine, this one is the large intestine. This is the large intestine. And the anus, this opening is called what? Anus. So these are the different parts which are associated with human digestive system. The various digestive glands associated with digestive system are salivary gland, gastric gland, liver, pancreas and intestinal gland. आप में से कौन हमको बताएगा कि लीवर releases which digestive juice? Liver. Okay, all of you have given correct answer and it is bile. Okay, it is what? Bile. तो हम लोग ने जस्ट ये इंट्रोडक्शन पार्ट अभी डिस्कस किया है. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट डाइजेशन. लेकिन आपको पता है कि डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बोलने से दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. तो पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट एसोसिएटेड ग्लैंड्स. दे आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. और ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में द इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर, फर्स्ट वन that we are discussing, salivary gland. Now कितना salivary gland है आप यहाँ देख सकते हो. There are 3 pairs of salivary glands. दिव्या बोत्रा पूछे which is correct? स्पेलिंग है esophagus का OESOPHAGUS या ESOPHAGUS. तो दोनों ही करेक्ट है, अलग अलग बुक में रहता है, लेकिन मोर प्रॉपर इज OES. ओके, OES से स्टार्ट करना, OESOPHAGUS. Now salivary gland, there are 3 pairs of salivary gland open into buccal cavity. Human beings में there are 3 pairs of salivary gland और इन ग्लैंड का सेक्रेशन बकल कैविटी में जाता है. इन ग्लैंड का सेक्रेशन को हम लोग बोलते हैं सलाइवा. सो एक पेयर है पैरोटिड ग्लैंड, एक पेयर इस साइड दिखाई दे रहा है, सेम उधर भी होगा. दूसरा पेयर सब मैंडिबुलर. ओके, वैसे पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी भी बोला जाता है. सब मैंडिबुलर इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? सब मैक्सिलरी. नाम आपका सिलेबस में, बुक में डायरेक्टली गिवन नहीं है, याद रहे तो अच्छा बात है. 3 pairs of salivary gland in human beings: parotid gland, sublingual gland and submandibular gland. Salivary gland secrete saliva. It releases saliva. Salivary gland buccal cavity का outer wall में है, तो कैविटी के अंदर नहीं है, और इसका सेक्रेशन कैविटी तक पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ डक्ट. ओके, so which perform the following function. Saliva perform following function. It lubricates food. Saliva में एक कंपोनेंट होता है म्यूसिन, और ये म्यूसिन फूड को lubricate करता है, and that helps in easy swallowing of food.
देन सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं और द मेन एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। कौन हमको बताएगा सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम क्या है? व्हाट अनदर टर्म? वान्या हैज गिवन द आंसर। Sivesh, your answer is wrong. Debanjan is correct. Achal is correct. Salivary amylase is also called tyalin, Ptyalin, tyalin, and which converts starch into maltose. मतलब starch is a carbohydrate, complex carbohydrate. इसको थोड़ा simple बना देगा। वैसे starch complete digest होने से ग्लूकोज बनता है। स्टार्च कंप्लीट डाइजेस्ट होने से क्या बनेगा? ग्लूकोज। लेकिन यहाँ स्टार्च अभी तक क्या बनेगा? मैल्टोज। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो ज्यादा स्वीट नहीं है, बट मेल्टोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच इज स्वीट इन टेस्ट। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कभी, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप राइस ग्रेन्स, ओके, राइस ग्रेन्स का बात मैंने सॉलिड विदाउट बॉईल किया हुआ कभी राइस ग्रेन अगर खाया है आपने, और उसको थोड़ा देर अगर आप च्यू करते रहोगे आपका बकल कैविटी में, तो थोड़ा देर बाद आपको वो स्वीट लगने लग जाता है। जब आप राइस ग्रेन कंज्यूम कर रहे हो, उसको च्यूइंग स्टार्ट किया, तो आप स्टार्च एक्चुअली यू आर कंज्यूमिंग, और वो स्टार्च धीरे धीरे आपका मुंह में कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मेल्टोज में। तो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट नहीं था धीरे धीरे स्वीट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, okay, also called tyline. Tyline converts starch into maltose. Tyline converts starch into maltose. और ये सेम एक्सपेरिमेंट आप घर में अ पीस ऑफ ब्रेड के साथ भी कर सकते हो। ब्रेड का एक पीस लो आप और उसको अपना बकल कैविटी में थोड़ा ज्यादा देर तक च्यू करते रहो। तो स्टार्टिंग में ब्रेड आपको उतना स्वीट नहीं लगेगा, लेकिन च्यू करते करते धीरे धीरे आपको वो स्वीट लगने लग जाएगा। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? द स्टार्च प्रेजेंट इन द ब्रेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू maltose। तो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट अबाउट व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंड सेकंड ग्लैंड दैट वी आर डिस्कसिंग लीवर। और आपको ये चीज जानना चाहिए, लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट secretes bile juice which contains bile salt, which contains bile salt। ओके, यहाँ दो बाइल सॉल्ट का नाम दिया हुआ है, याद रहे तो अच्छा है, लेकिन बुक में डायरेक्टली गिवन नहीं है, मैं बता देता हूँ। सो इट सीक्रेट्स बाइल जूस विच कंटेन्स बाइल सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। इट कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, पिगमेंट मीन्स व्हाट? कलर्ड कंपोनेंट। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ये है लीवर। लीवर के यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो लीवर का सेल्स जो बाइल रिलीज करेगा वो टेम्पोररीली कहाँ स्टोर होगा? इनटू द गॉल ब्लैडर एंड इज कैरीड टू द डुओडेनम। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। डुओडेनम इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ओके, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां तक इसको कैरी किया जाता है बाइल को विद द हेल्प ऑफ डक्ट विच इज कॉल्ड बाइल डक्ट। क्या है डक्ट का नाम? बाइल डक्ट। तो आपको अगर पूछा जाए how many pairs of salivary glands are there in human being? Okay, 3 pairs. Okay, all are giving correct answer. Now if I ask you, name the enzyme present in bile, do you know that? चिराग wrong है। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल। मनीष चौधरी बाइल जूस बोल रहे हैं, आंचल ट्रिप्सिन बता रही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो एंजाइम, देयर इज नो एंजाइम इन बाइल। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। फिर भी बाइल डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? जस्ट लुक एट हियर। ओके, bile juice performs following function: helps in emulsification of fat. Emulsification of fat means bigger molecules of lipids are converted into smaller particles. ऐसा करने का फायदा क्या है कि बाद में जो एंजाइम है वो लिपिड्स को इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा, तो थोड़ा हेल्प कर दिया उस प्रोसेस में। Provides alkaline medium for the functioning of enzyme.
ये बाइल कहाँ जा रहा था, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ बाइल जूस ही नहीं आता, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रेटिक जूस भी आता है। तो पेनक्रेटिक जूस में जो एंजाइम होगा, ओके, पेनक्रेटिक जूस में जो एंजाइम होगा, उन एंजाइम को फंक्शनिंग के लिए मीडियम एल्कलाइन चाहिए। लेकिन स्टोमक में फूड जो होता है उसका, वो उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो स्टोमक के बाद फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसको एल्कलाइन होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा, एल्कलाइन। और बाइल जब मिक्स हो जाता है फूड के साथ, फूड एल्कलाइन हो जाता है, दैट हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम एंड इट एक्टिवेट्स पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन विच हेल्प इन डाइजेशन हियर। सो आपको अगर बाइल जूस का फंक्शन पूछे तो यहाँ पे है, लीवर का फंक्शन पूछे तो उसमें एक है हेल्प्स इन डाइजेशन। कैसे, यू कैन एक्सप्लेन, ओके। एंड बाइल is stored in gallbladder. Liver is the largest digestive gland, and bile juice, the salts present in bile juice, helps in emulsification of fats. Okay, Sivesh पूछ रहा है कि then why do we become fat if fats are emulsified? आप अगर एक्सेस में कंज्यूम कर रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट भी आपका बॉडी में फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप उस कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज नहीं करते हो, फैट को यूटिलाइज नहीं करते हो, आपका फिजिकल वर्क कम है और आपका कंजम्पशन के हिसाब से, तो धीरे धीरे वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेगा और देन यू विल बिकम फैट। और सिवेश को तो जरूरत भी है लगता है। सो लीवर, हैव यू अंडरस्टूड लीवर पार्ट? मनीष चौधरी हंस रहा है। मनीष चौधरी तुमको भी जरूरत है, टेंशन मत लो, दोनों को ही फैट्स का रिक्वायरमेंट है। Mahek Jain is asking, sir, the common bile duct is the hepatopancreatic gland only or is the same or other duct? Hepatopancreatic वही है महक जैन। ओके, हेपाटो मतलब ये हो गया लीवर, और पेनक्रेटिक ग्लैंड दोनों का कंबाइंड एक ग्लैंड आता है, कंबाइंड एक डक्ट होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा। ओके, so liver and then pancreas. Pancreas is the second largest digestive gland, and it secretes pancreatic juice. Secretes what? Pancreatic juice. It is this juice contains enzyme like trypsin, pancreatic amylase, pancreatic lipase. Trypsin जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। पेनक्रेटिक अमाइलेज इट कैन कन्वर्ट स्टार्च इनटू मेल्टोज। वैसे तो स्टार्च इनटू मेल्टोज बकल कैविटी में भी होता है, लेकिन बकेट कैविटी में हम लोग फूड को बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रखते। आप देखोगे एक्सपीरियंस कि बहुत देर तक फूड को आप च्यू नहीं करते हैं, कहाँ, बकल कैविटी में। तो बाद में जो स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हुआ बकल कैविटी में, वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, वो डाइजेस्ट होगा इंटेस्टाइन में, स्टोमक में नहीं होगा। एंड स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मेल्टोज। पेनक्रेटिक लाइपेज, लिपिड डाइजेशन पेनक्रियास से स्टार्ट होता है। पेनक्रेटिक लाइपेज एक्ट्स ऑन लिपिड्स एंड कन्वर्ट्स लिपिड्स और फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट हैपेंस व्हेन लिपिड्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड, what happens when lipids are completely digested? When lipids are completely digested, they are converted into fatty acids and glycerol. अब पेनक्रियास के बारे में आप एक इंपॉर्टेंट बात जान लो, दैट यू शुड नो। पेनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। इसको मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोला जाता है कि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट रिलीज करेगा डाइजेस्टिव जूस और एंडोक्राइन पार्ट रिलीज करेगा हार्मोन्स। एंडोक्राइन पार्ट रिलीजेस हार्मोन्स। कौन सा? दो कॉमन हार्मोन है इसमें, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एंड एक्सोक्राइन पार्ट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, और एंजाइम्स का नाम ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ट्रिप्सिन, ओके, देन पेनक्रेटिक अमाइलेज, पेनक्रेटिक लाइपेज। तीनों
मेन जो फूड का कंपोनेंट है उनको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम यहाँ पे है। लुक एट द नोट पार्ट। नोट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पेनक्रियास मिक्स्ड क्यों है, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट दोनों है। इसका एंडोक्राइन पार्ट रिलीज करेगा हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, डेफिशिएंट रिलीज ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज। आपका बॉडी का पैनक्रियाटिक ग्लैंड अगर ठीक से फंक्शन नहीं करेगा तो आपका बॉडी में इंसुलिन का रिलीज कम हो जाता है, और इंसुलिन अगर कम रिलीज होगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, डायबिटीज। इज कॉल्ड व्हाट, डायबिटीज। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अभी तक समझ में आ गया? वी डिस्कस्ड अबाउट सलाइवरी ग्लैंड, we discussed about liver, we discussed about pancreas. Yes, inactive फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आएगा ट्रिप्सिन। ओके, तो inactive form is trypsinogen and that gets converted into trypsin. तो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ग्लैंड के बारे में डिस्कशन है, तो जब डाइजेशन का बात करेंगे विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेशन इन बकल कैविटी। Digestion in buccal cavity. The cavity inside mouth is buccal cavity. So digestion of food in buccal cavity, food has to pass through both physical and mechanical process. Physical and mechanical process after ingestion in the buccal cavity. और ज्यादा प्रॉपर मुझे तो यहाँ पे और चीज एक ऐड करने का मन है, फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ओके, जहां फिजिकल वर्ड नहीं भी यूज करें तो केमिकल एंड मैकेनिकल आप यूज कर सकते हो। केमिकल प्रोसेस भी होगा और मैकेनिकल प्रोसेस भी होगा। मैकेनिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा आपका टंग, टीथ, ये सब, और केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा एंजाइम्स। द टीथ एंड टंग हेल्प्स इन द mastication of food. Mastication of food means what? Bigger particles of food are converted into smaller particle with the help of teeth and tongue. चीविंग बोल सकते हो आप। ड्यूरिंग मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड इज मिक्स्ड विद सेक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज सलाइवा। तो आप जब फूड को मैस्टिकेट करते रहते हो, कहाँ? आप जब फूड को मैस्टिकेट करते रहते हो कहाँ पे? इन द बकल कैविटी, तो उस वक्त फूड के साथ मिक्स हो जाता है सलाइवा, फिर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। इसका एक और नाम हम बता चुका है, दैट सलाइवरी अमाइलेज इज आल्सो कॉल्ड टाइलिन। और इसमें एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है, ये एंजाइम नहीं है, याद रखना। डाइजेस्टिव एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। वैसे और भी एंजाइम होता है, डिटेल यहाँ पे उतना डिटेल भी नहीं है। हैव यू हर्ड अबाउट लाइसोजाइम? लाइसोजाइम भी एक एंजाइम होता है, और किसी को पता है लाइसोजाइम क्या बारे में कुछ भी? गुड, देवांजन नोज दैट। एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ये हम लोग का बकल कैविटी में बैक्टीरिया को किल कर सकता है, लाइसोजाइम। देन म्यूसिन और म्यूकस भी बोल सकते हो आप, वो एक स्लिपरी सब्सटेंस है। अब सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करेगा? हम लोग को ऑलरेडी पता है, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू मेल्टोज। म्यूसिन क्या काम करेगा? म्यूसिन मेक्स फूड स्लिपरी, which helps in easy swallowing of food. सोचो, आप बकल कैविटी में फूड लेने के बाद अगर वो इजीली स्लिपरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता तो आपको उसको स्वेलो करने में बहुत डिफिकल्टी हो सकता है। तो यहाँ नयन चौरडिया बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, तो वो कंप्लीट होने के बाद ही उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो 4-5 बार रिपीट करने का जरूरत, ऑलवेज वेट किया करो कि कब आपको क्वेश्चन पूछना है, या आप क्वेश्चन पूछ के उसको रिपीट इतना करने का जरूरत नहीं है। Which helps in easy swallowing of food. In this way, only carbohydrate part of the food is digested in mouth cavity and that too partially. तो हम लोगों ने बकल कैविटी में जो डाइजेशन पार्ट डिस्कस किया है, बकल कैविटी में
वहां हम लोगों ने डिस्कस किया कि फूड बकल कैविटी में जाने के बाद सिर्फ उसका एक ही कंपोनेंट डाइजेस्ट हुआ, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मेल्टोज। प्रोटीन तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, लिपिड्स भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, और विटामिन मिनरल्स वाटर इनका डाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। दीज आर सिंपलर मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म। तो जब हम लोग डाइजेशन का बात करते हैं, वी मेनली डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो हम लोगों ने अभी अभी बात किया डाइजेशन इन बकल कैविटी। अब फूड बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो चुका है जितना होना था, उसके बाद फूड कहाँ पे आएगा? बकल कैविटी के बाद फूड इसोफेगस के थ्रू आ जाएगा स्टोमक में। इसोफेगस के थ्रू कहाँ आ जाएगा? स्टोमक में। फूड स्टोमक में आ गया, ठीक है। द स्टोमक churns the food into thick pulpy mass called chyme. ये स्टोमक कुछ मिक्सर ग्राइंडर जैसा है कि आप मिक्सर ग्राइंडर में कोई भी कोई फूड का कंपोनेंट या कुछ भी वेजिटेबल ये सब एक बार अगर मिक्सर ग्राइंडर को घुमा देते हो तो वो कैसा हो जाता है? वो सेमी सॉलिड पल्पी हो जाता है, और इसके अंदर भी स्टोमक में भी वही होने वाला है। इट टेक्स सम टाइम। ओके, तो मनीष चौधरी बता रहे चटनी बना बन जाता है। इट इज लाइक दैट। ओके, as soon as food enters the stomach, it gets mixed with gastric juice secreted by the cells present on the wall of the stomach. तो जैसे ही फूड यहाँ पे पहुंचेगा तो ये जो सेल्स है on the wall of the stomach, they will start releasing what? A kind of digestive juice. ठीक है। हम लोगों ने बात किया सलाइवरी ग्लैंड जो है वो बकल कैविटी के वॉल में नहीं होता, बाहर होता है। लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे है? ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा? स्लिपरी सब्सटेंस है, लेकिन यहां म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस एक लेयर बनाएगा। म्यूकस एक लेयर बनाएगा किसमें? इनर वॉल ऑफ द स्टमक में। ये पूरा वॉल में ऐसा म्यूकस का लेयर होगा, एंड दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स म्यूकस जो कि वॉल को प्रोटेक्शन करेगा। enzyme pepsin helps in digestion of protein and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करने वाला है? यहां पे एंजाइम पेप्सिन है, ठीक है। वैसे पेप्सिन होता नहीं है, स्टार्टिंग में प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और HCl उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब इस एंजाइम को काम करने के लिए मीडियम को एसिडिक होना जरूरी है। तो सोचो नेचुरली क्या एडजस्टमेंट है। जैसे ही फूड स्टोमक में आएगा, जैसे ही फूड स्टोमक में आएगा तो क्या होगा? फूड एसिडिक हो जाता है बिकॉज ऑफ सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ क्या? गैस्ट्रिक जूस। Gastric HCl provides acidic medium which is essential for the action of gastric enzyme. गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम है उनको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करने वाला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और फायदा, इट किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड एंड कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजेन या प्रोपेप्सिन इनटू व्हाट? एक्टिव पेप्सिन। फिर पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन कन्वर्ट्स पेप्टोन्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीज। प्रोटीन डाइजेशन तो हुआ ही नहीं था, बक्कल कैविटी में प्रोटीन डाइजेशन नहीं हुआ था, यहाँ प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इन योर बॉडी वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स? in your body protein digestion starts in stomach. Proteins gets converted into simpler molecules like peptones and protease. लेकिन क्या आपको पता है कि what happens when proteins are completely digested? What happens when proteins are completely digested? देवांजन ने करेक्ट आंसर दिया है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल रॉन्ग है। सिवेश का करेक्ट आंसर अमाइनो एसिड। Vanya, Nikhil, they have given the correct answer. What happens when proteins are completely digested? When proteins are completely digested, they are converted into amino acid. What happens when lipids are completely digested? When lipids are completely digested, they are converted into
They're converted into fatty acid and glycerol. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो क्या क्या स्टार्च कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका था क्या बकल कैविटी में? स्टार्च क्या कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका था क्या बकल कैविटी में? नहीं, नो. स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन होने से क्या प्रोड्यूस होगा? स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, किसी को पता है? महक ने लिखा सिंपल सुगर्स. ओके, मोर प्रॉपरली यू कैन आंसर एज ग्लूकोज. क्या? ग्लूकोज बनेगा. फ्रुक्टोज भी बन सकता है. ओके, सिंपल सुगर बनेगा और आप ग्लूकोज बोल सकते हो. स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, वी कैन से. Then mucus. Mucus protects the lining of the stomach from the action of hydrochloric acid. In this way, only protein component of food is partially digested in stomach. ये भी complete digestion नहीं होगा. ये भी कैसे digest हो रहा है? Partial digestion. तो आपको एग्जाम में सलाइवा का फंक्शन पूछा जा सकता है. आपको एग्जाम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन पूछा जा सकता है. आपको एग्जाम में डिफरेंट एंजाइम का फंक्शन पूछा जा सकता है. ओके, तो यहाँ लर्निंग का काम बहुत है. आपका लर्निंग का काम बहुत है. अब लुक एट दिस एक्टिविटी. We take 1 ml starch solution in 2 test tube A and B. 2 टेस्ट ट्यूब लेना आपको A and B और उसमें लेना है starch solution. फिर हम लोग 1 ml सलाइवा टेस्ट ट्यूब A में डाल देंगे. Then both the test tubes are left undisturbed for 20 to 30 minutes. तो अब हम लोग उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे. आयोडीन सॉल्यूशन से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किसी सैंपल में स्टार्च है कि नहीं. ठीक है. आयोडीन सॉल्यूशन जो लाइट ऑरेंज कलर का होता है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा अगर स्टार्च होगा, और स्टार्च नहीं होने से वो लाइट ऑरेंज ही रहेगा. ठीक है, कुछ समझ में आया? 2 टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने लिया था, दोनों में स्टार्च सॉल्यूशन था. पहला टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या लिया? पहला टेस्ट ट्यूब में इसमें सलाइवा भी डाल दिए. सलाइवा में आपको पता है एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट कर सकता है. मतलब ये टेस्ट ट्यूब में, पहला वाला टेस्ट ट्यूब में स्टार्च क्या बन चुका? मेल्टोज. तो आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च डिटेक्शन नहीं होगा. सेकेंड वाला टेस्ट ट्यूब में अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो कैसा मिलेगा आपको? डार्क ब्लू. सो यहाँ पूछा गया इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व द कलर चेंज? इन टेस्ट ट्यूब बी द कलर विल चेंज फ्रॉम डार्क ब्लू टू blue black. What does this indicate about the presence or absence of the starch in the 2 test tube? 20-30 मिनट रखने के बाद का बात पूछा जा रहा है. So in the test tube B, the presence of starch is indicated as starch reacts with iodine to produce blue black color. टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च क्यों नहीं मिला? स्टार्च ही तो लिया था हम लोगों ने, क्योंकि वो स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका था बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा. बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा. What does this tell us about the action of saliva on starch? So saliva contains an enzyme, salivary amylase, ptyalin, which acts on starch and converts starch into simple carbohydrate like maltose. So the color of the iodine is not changed in the test tube. Have you understood this activity? Just raise your hand to confirm. नयन पूछ रहे हैं कि मेल्टोज क्या है? मेल्टोज भी एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. इट्स अ काइंड ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेल्टोज. They are simple carbohydrate, they are sweet carbohydrate, sweet in taste. तो अब तक हम लोगों ने डाइजेशन डिस्कस किया है, डाइजेशन इन बकल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक, और अब हम लोग बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन ये स्टोमक के बाद ये जो यू शेप्ड ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये यू शेप्ड होता है. इस ट्यूब का स्टार्टिंग ट्यूब को डुओडेनम बोला जाता है. और ये पूरा जो कॉइल स्ट्रक्चर यहाँ पे है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, दे आर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, सो जैसे ही फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, फूड के साथ 2 जूस मिक्स होता है एक साथ. एक तो बाइल
और दूसरा पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, दूसरा कौन सा जूस? पेनक्रियाटिक जूस। तो small intestine receives digestive juices from liver which is bile juice and pancreas which is pancreatic juice। तो पहले बाइल के बारे में बात कर लेते हैं। बाइल जूस कंसिस्ट ऑफ वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था अबाउट दिस। बाइकार्बोनेट्स मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। तो ये यहाँ स्टोमक में फूड कैसा था? एसिडिक। वहां एसिडिक क्यों चाहिए? क्योंकि वहां जो एंजाइम है उनको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम। अब ये फूड जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वहां जो एंजाइम है उनको चाहिए न्यूट्रल या बेसिक मीडियम। तो जैसे ही फूड एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड इज मिक्स्ड विथ व्हाट? फूड इज मिक्स्ड विथ, जैसे ही एंटर होगा फूड किसके साथ मिक्स हो जाएगा? बाइल। एंड बाइल जूस हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम बट इट परफॉर्म्स important functions like emulsifies fat, makes the medium alkaline, which is essential for the action of pancreatic enzyme. It stops the action of gastric enzyme। मतलब जो स्टोमक में जो एंजाइम था उनका फंक्शन भी यहाँ बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ मेन एंजाइम किसका काम शुरू हो जाएगा? पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का। And pancreatic juice has the following enzyme. They are trypsin, pancreatic amylase, pancreatic lipase. Trypsin क्या करेगा? स्टोमक में जो प्रोटीन पेप्टोन प्रोटियोज बना था उसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा? अमाइनो एसिड। इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पैनक्रेटिक अमाइलेज क्या करेगा? जो बचा खुचा स्टार्च और भी अगर बच गया तो उसको मेल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। पैनक्रेटिक लाइपेज क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स फैट और फैटी एसिड इनटू फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बच गया। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से क्या बन गया? मेल्टोज। स्टार्च से मेल्टोज, और आगे जाके ये मेल्टोज बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनने के बाद इट विल बी एब्सॉर्ब्ड। The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice। यहाँ एक और जूस आने वाला है, intestinal juice, and the intestinal juice contains enzyme which complete digestion by finally converting। अब जो एंजाइम आने वाला है वो फाइनली कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। कुछ प्रोटीन बचा तो फाइनली क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो भी होगा स्टार्च है, ठीक है, और भी कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ओके, सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब बन जाएगा। ये फ्रुक्टोज फ्रूट्स में होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। गैलेक्टोज मिल्क में होता है। Fats into fatty acid and glycerols। In this way, all components of food are digested in the small intestine। तो इस तरह इन सब एंजाइम का हेल्प से फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजिक न्यूट्रिशन, पहला स्टेप इंजेशन, दूसरा स्टेप डाइजेशन। हम लोगों ने दो स्टेप के बारे में बात किया है और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट थर्ड स्टेप, एंड द थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, अब वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब होना है। एब्जॉर्ब कहाँ कैसे होगा? ये जो वॉल है, इस वॉल के थ्रू ब्लड में पहुंचना है इसको, ठीक है। सो ये जो वॉल है, वॉल स्पेशली डिजाइन है। ये जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन इनर वॉल, यहाँ ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड व्हाट? दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विल्ली या विलाई। ओके, दोनों टर्म यूज किया जाता है। और these villi और villi help in the absorption of digested food। कैसे? क्योंकि ये जो each villus, एक जो villus यहाँ ड्रॉ किया है उसका देखो, ये आउटर लेयर बहुत थिन होता है, लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। वन एक सेल का मतलब यूनिसेलुलर सेल, सॉरी, ये जो लेयर है वन सेल थिक है। कितना? वन सेल थिक। और इस लेयर को इजीली फूड का कंपोनेंट्स क्रॉस करके पहुंच जाएगा अंदर। और अंदर आप देख सकते हो वहां पे बहुत बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल। तो यहाँ पे ब्लड भी फ्लो होते रहेगा, लिम्फ भी फ्लो होते रहेगा, और फूड धीरे धीरे ब्लड और लिम्फ में मिक्स होते रहेगा। ओके,
सो द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको अगर पूछा जाए विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, द पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर एब्जॉर्ब होता है और बाकी फूड का सभी कंपोनेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में। The intestine is provided with lymph vessels as well as blood capillaries। आप देख सकते हो यहाँ पे विलाई के अंदर वाटर, मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरीज। तो ज्यादातर कंपोनेंट तो ब्लड में चला जाएगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वो लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा और बॉडी का अलग अलग टिश्यू में जाके स्टोर हो जाएगा, उनका रिक्वायरमेंट इमीडिएट नहीं होता। जब आपका बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डेफिशिएंसी हो जाएगा तब आपका बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो धीरे धीरे यूज होने लग जाता है। फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द इंटेस्टाइन हैज फॉलोइंग पिकुलियरिटीज। ये आ सकता है एग्जाम में कि आपका इंटेस्टाइन का क्या स्पेशल फीचर्स है दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एक फीचर है लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होने का फायदा क्या है ह्यूमन बींग्स में? स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ इज अबाउट 6 to 7 मीटर्स। इतना लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों चाहिए? लॉन्ग और कॉइल्ड होने का एडवांटेज क्या है? फूड स्लोली एंड स्लोली पास होगा। जितना धीरे फूड पास होगा उतना एब्जॉर्प्शन का टाइम ज्यादा मिलेगा, उतना डाइजेशन इजीली होगा। देन इट्स एपिथेलियल लाइनिंग इज वेरी थिन लीडिंग टू रैपिड डिफ्यूजन। वो तो मैंने बता दिया, एपिथेलियल सेल का लाइनिंग थिन है तो डिफ्यूजन एब्जॉर्प्शन इजीली होगा। देन द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस। ये जो प्रेजेंस ऑफ विली मतलब वॉल का इनर वॉल जो है उसमें ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने का फायदा क्या है? उसका ये फायदा है कि एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज हो जाता है। एब्जॉर्प्शन का एरिया, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, then villi are profusely supplied with blood capillaries. They are supplied with blood capillaries and lymph vessels. तो फूड को अल्टीमेटली जाना कहाँ पे है? ब्लड और लिम्फ में चला जाएगा तो फूड एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद फूड का क्या होगा? फूड एब्जॉर्ब होने के बाद फूड का यूटिलाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग करेगा एंड लिपिड्स विल स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो एसिमिलेशन हो गया। अब आप ऐसा बहुत चीज कंज्यूम करते हो जो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो उसका क्या होगा? आप कितना फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हो उसमें सेलुलोज भी होता है, बट वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ओके, तो सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करता है, तो आपको फाइबर्स कंज्यूम करना चाहिए फूड में। So the elimination of undigested remain of the food from the alimentary canal is called what? Egestion or defecation. Excess of water is absorbed in large intestine and the contents become semi-solid feces which passes out into rectum and expelled out through anus. Okay, तो जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा वो एनस से रिलीज हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में मैंने बता दिया कि लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, और कोई भी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई न्यूट्रिएंट्स बच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, फिर फूड चला जाएगा रेक्टम में। देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन play an important role in breaking down of undigested sugar and fibers into fatty acid. तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम सुनते ही मेजोरिटी ऑफ लोगों को डर लगता है, लेकिन यह जान के आपको हैरानी होगा कि ज्यादा बैक्टीरिया हम लोग को बेनिफिट करता है और बहुत कम बैक्टीरिया ही डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो शुगर, फाइबर, यानी फाइबर में क्या है? फाइबर में सेलुलोज, तो उन सबको फैटी एसिड में कन्वर्ट भी कर सकता है लार्ज इंटेस्टाइन। सो वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोग का आज का फोकस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है और ये जो टॉपिक है डेंटल कैरीज, आप रीडिंग करके देखना। इट इज वेरी इजी टॉपिक, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली। और हर्बीवोरस एनिमल का जो इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग होता है, कार्निवोरस का इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है। रीजन पता है आपको में से किसी को?
टाइगर का इंटेस्टाइन का लेंथ हम लोग का इंटेस्टाइन का लेंथ से कम है. That reason is that meat or flesh is easy to digest compared to what? Compared to ओके सेलुलोज तो ऐसे भी डाइजेस्ट हम लोग नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डाइजेस्ट. अगर हर्बीवोरस एनिमल का बात करें तो सेलुलोज इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. ओके कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है. तो अब आपका ड्यूटी है कि शीट से कुछ एक्टिविटीज में मिला नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर दूंगा. पेज नंबर 7 तक आप सेल्फ रीडिंग कर लेना. ओके ओके सो आज यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं. और अब आप मेंटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो इफ यू वांट. एंड बाय दैट टाइम you can mark your attendance. You just mark your attendance, and if you want you can participate in the quiz. क्विज थोड़ा आज फास्ट खिलाऊंगा मैं because I have another class immediately after your class. There are 15 questions. Okay, there are 15 questions today. शायद कंप्लीट नहीं होगा हमको लगता है 15 क्वेश्चन वाला. तो we have about 10 minutes. You should enter as fast as possible. थोड़ा और जल्दी. Till now 12, 13. Now 15. ओके आदित्य मजुमदार कोड क्यों पूछ रहा है समझ में नहीं आता. कोड तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. 817866 817866.